अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we will start from question number 11 of exercise 5.3, and the topic is arithmetic progression, exercise number 5.3, and question number 11 is if sum of first n terms of AP. We are given that sum of first n terms of AP. We are given that sum of first n terms of AP किसके बराबर दिया गया है, that is equal to 4n Sn equals to 4n minus n square. As we know that sum of n terms of AP होता है बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where n equals number of terms, a is the first term, d तो है हमारे पास common difference, and Sn equals sum of n terms of AP. Here in question number 11, we are given that sum of first n terms of AB, जो पहली n terms, number of terms of AB हमारे पास दी गई, उनका sum है 4n minus n square. हाँ, what is first term? We have to find what is A, that is A1 first term. What is second, that is, लेकिन इसके लिए A1 के लिए फर्स्ट टर्म के लिए इसने कहा कि S1 फर्स्ट टर्म के बराबर है as per question, as per the statement of the question. हाँ, that is S1. What is the sum of first two terms? तो हमने S2 निकालना है, we have to determine S2. हाँ, उसके बाद what is the second term? Similarly find third term. हमने A2 निकालनी है, हमने A3 निकालनी है, and after that what is second term? Similarly find third term and nth term. tenth term भी हमने निकालनी है, that is A10. And after that we have to determine an we हमने nth term by using this Sn equals to 4n minus n square. हाँ, for as per the question we are given that S1 equals to A1. first term S1 जो है वो A1 first term sum of first term के बराबर दी गई है, ठीक है ना बेटा. For n equals to 1 we have, तो यहाँ पे अगर हम n 1 के बराबर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वहां पे, that is S1 equals to 4 into 1 minus 1 square. Very good. That is S1 equals to 4 minus 1, S1 equals to 3 according to question. As per question we are given that S1 equals to A1 और A1 equals to 3. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ AP किसके बराबर आती है, 3 के बराबर. शाबाश. फॉर n equals to 2, जब हम 2 के बराबर n ले रहे हैं, we know that therefore S2 equal, या इन यहाँ पे हम लिख सकते हैं Sn equals to 4n minus n square. शाबाश. S2, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे S2 आएगा और 4 into 2 minus 2 square. शाबाश. S2 equals 4 2s हो गया 8 minus 2 2s हो गया 4, that is S2 equals to 4. Clear? शाबाश. We know that for A2 we have, तो A2 के बारे में हमें पता है कि A2 होता है बराबर A2 equals to S2 minus S1. तो that is A2 equals to S2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, that is 4 minus S1 that is A1 that is 3. तो A2 हमारे पास आ रहा है किसके बराबर, 4 minus 3 that equals to 1. Clear? Now we know that for common difference we have, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ रही है, सेकंड टर्म भी आ रही है, तो अब इससे obviously हम we will be able to determine the common difference. तो for CD we have, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये पता है कि CD कॉमन डिफरेंस होती है बराबर A2 minus A1. तो यहाँ पे A2 हमारे पास क्या है, दैट इज CD अब आएगी A2, दैट इज A2 फर्स्ट टर्म ऑफ A1 minus A1 that is 3. तो कॉमन डिफरेंस दैट इज 1 minus 3 that is -2. तो अब हम यहाँ पे nth टर्म निकाल सकते हैं. उसके बाद आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू डिटरमाइन
सेकंड टर्म निकाली हमने, थर्ड टर्म, 10th टर्म, तो an, फॉर an वी हैव नाउ, फॉर an वी हैव nth टर्म के लिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेरी गुड। तो an, तो a फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी अभी हमने निकाली, तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी S1 के बराबर निकली थी। तो फर्स्ट टर्म दैट इज, जैसे कि अभी हमने निकाला S1 फॉर n इक्वल्स टू, हाँ, तो दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। तो यहाँ पे a 3 के बराबर आ रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 2, और वी कैन राइट इट एज, हाँ, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, तो ए एन अब हमारे पास किसके बराबर आ रही है, दैट इज ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस, सॉरी, माइनस इंटू प्लस हो गया -2n, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 दैट इज ए एन इक्वल्स 3 प्लस 2 दैट इज 5 माइनस 2n। तो nth टर्म हमारे पास किसके बराबर आई, 5 माइनस 2n। अब रिमेनिंग जो टर्म्स हमारे पास रहती है दैट इज थर्ड टर्म। तो फॉर a3 देयरफॉर a3 किसके बराबर आएगी, 5 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, दैट इज a3 इक्वल्स टू माइनस 1। हाँ, अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या निकाले हमने, थर्ड टर्म, इसके बाद 10th टर्म, a10, फॉर a10 वी हैव, तो हमारे पास क्या है, हाँ, ए एन इक्वल्स टू 5 माइनस 2n, दैट इज a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 10, a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 20, a10 इक्वल्स टू 15, लेकिन माइनस 15, देयरफॉर वी कैन से दैट, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स ऑफ AP हमने निकालनी थी, तो हमें क्या -15 आ गया। हाँ, a3, हाँ, a3 हमारे पास किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर। हाँ, तो a3 -1, a10 -15, क्लियर। एंड an हमारे पास 5 माइनस 2n, a1 और a2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दी गई है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, find sum of first 40 positive integers divisible by 6. We know that numbers which are divisible by 6, obviously they are the multiples of 6. 6 1, 6 2 are 12, 6 3 is 18, 6 4 are 24, or we can write it as, जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, हमने पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने सम निकालना है, विच आर डिवाइडेड बाय किससे, divisible by 6। तो we can write it as positive integers, हाँ, positive integers divisible by 6 forming an AP, और that is कौन कौन सा है, 6 1 6, 6 2 is 12, that is 6 1 6 2 6 3 is 18, up to 40 terms, up to 40 find the sum of first 40 positive integers। वो हमें पता है कि up to जो n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया that is 40, ठीक है बेटा। और we can write it as, therefore we know that for Sn we have, तो sum of n terms के लिए हमें पता है कि Sn होती है बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। Here, तो यहाँ पे n का वैल्यू 40 है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, a6 कामा, यहाँ पे a6 के बराबर है, n का वैल्यू 40 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस है d इक्वल्स टू 6, बिकॉज 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6,
Therefore, we can simply write as S40 equals to 40 by 2 into 2 into A का वैल्यू 6 है प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी इसकी 6 के बराबर है। ठीक है बेटा, शाबाश। और वी कैन राइट एज S40 equals to 20 2 1s 2 2s 2 zeros into 6 2s हो गया 12 प्लस 39 into 6। ठीक है, शाबाश। और वी कैन राइट इट एज, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, तो दैट इज S40 sum of 40 positive integers divisible by 6, that is 20 into 12 plus, हाँ 9 6s are 54 4 5 is carry 9 6 3s are 18 18 plus 5 18 plus 5 that is 23, तो 2 3 4। ठीक है बेटा, और we can write as S40 equals to 20 into 12 plus 2 3 4 that is 2 4 6। हाँ तो S40 that is sum of 40 positive integers divided by 6 equals to 0 6 2s 6 2s 12 2 1 is carry 2 2s 4 5 sorry 6 0 0 0 6 2s 12 2 1 is carry 2 4s 8 हो गया 9 2 2s 4 4 9 2 0। Therefore we can say that first sum of first 40 positive integers divisible by 6 equals to 4920। Now by this we have completed question number 12। आई होप कि आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा ठीक से। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए मेंशन नहीं करता हूँ ताकि आप यू विल रिमेन इन टच विद द टेक्स्ट बुक, ताकि आप टेक्स्ट बुक के साथ, दैट इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ दिस आपका जो 10th का एग्जाम है, टू रिमेन इन टच विद द टेक्स्ट बुक, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, ताकि एग्जाम में आप वहाँ पे भूल नहीं पाओगे ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है और कैसे है। ठीक है ना बेटा, and this question number 13 and question number 14 will remain assignment for you people, and if you feel any difficulty कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको, तो you will call on my number and the number is 8492019905। तो stay home, stay safe, have a nice day, thank you very much।